Welcome, Dr. Himanshu. It is very nice to see you and a lot of congratulations. आपको आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. Yes, At sir. Thank last you. आपने इतना हार्ड वर्क किया and cleared the exam in the first attempt and it's a very nice and a big achievement that is there. And it is all your hard work that has turned the things into this positive result. I wish a lot of success to you in the future also. Thank you Now, so much, sir. this entire session is just to help out your juniors actually, because a lot of confusion is going around. uh, See, for example, let's take your example. आप जब वहाँ थे Tbilisi में, and when you came back here in India, how you were preparing there for FMG in the your particularly in your last year? Like, sir, in the last year, तो we were like we were preparing only for the exams. मतलब till the third last semester, मतलब जो हमारा fourth year का end था, तब Hmm. तक तो we were just preparing for the exams which were university having. Like the teachers were giving their notes, their like material and all. But yeah, we got after that we came into contact with the seniors. Like we got to know about the pattern and the exams. So Hmm. after that, exactly from the like mid of the last year, I started preparing. Like after the 2 3 month passed for the last year, then from that time, I exactly started preparing for the MCI exam. Okay. Up till that, I was like I was doing the studies for the university exams and going with that only. Hmm. So, okay. So when you came here in India, and there are two questions. One, there are so many institutes are there. What had made you to select Arise? And second, how you selected between online and offline? Sir, actually, I didn't came to India while I was studying because I started my study when I was actually having my academics. It was not like that I was done with my graduation and I completed my degree. I was still having one exam pending. At that time, I joined the classes. So coming to that, sir, what made me to make the decision for the RIs is that there were many factors. First of all, though, I contacted many of the seniors who did that. Some of the seniors who were there with the offline and online. And second important things, I want like I was specially interested to study from certain faculties. Hmm. So from there, for like certain subjects, I got oriented with some of the teachers, like our Nadeem sir. For Yes, yes. yeah, after that Khalil sir. Then I watched some of your videos. So from that, sir, I developed an interest, and at that time only, I got like linked up with the teachers. Like it Hmm. was not new for me when I joined Arise. So Hmm. in that way, and second one was I also compared the pattern because what many of the seniors told me that we were into this coaching and that coaching, but at the end they told me that you should join the coaching in which you will not only like complete the syllabus, but at the end of the day you will get enough time to revise your notes. Yes, yes, In yes. between, you get time to after completing the subjects and the test, you should not just give the test because the कोचिंग इज It is हैविंग just not the syllabus, it is the complete पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, वो हाँ, बहुत मैटर करता है क्योंकि वो पॉजिटिविटी, वो सपोर्ट, वो मेंटल सपोर्ट, ये जर्नी इतने आसान है नहीं, नहीं सर, राइट? केवल अगर कंटेंट वाइज देखेंगे, कंटेंट तो वैसे भी बहुत सारा बहुत जगह अवेलेबल है, यस बट अ सर। लॉट ऑफ दूसरी दूसरी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे, तो हाउ आप आपका मोमेंटम कैसे बनाते थे? क्योंकि 9 to 6, समटाइम 9 to 7 क्लास होती थी, तो आप पूरी क्लास में बैठे रहते थे, नोट्स बनाते थे साथ साथ में? यस सर, जो पूरा नोट्स था मतलब दैट तो फॉर टोटल 19 सब्जेक्ट्स में से आई डिड 17 सब्जेक्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द ऑनलाइन वीडियोस। एंड आई हैड एज आई वाज नॉट इन इंडिया, सो मैंने सारा जो मटेरियल सॉफ्ट कॉपी था उसके प्रिंट आउट्स लेके उसके नोट्स हम उस पे ही लिखते थे। सो सर, तो मोमेंटम मतलब इन द स्टार्टिंग तो वैसा पैटर्न नहीं था, क्योंकि जब हम वहाँ पे विदाउट कोचिंग थे तो हम हमारे वे से स्टडी करते थे। माय फर्स्ट सब्जेक्ट वाज फिजियो। सो सर, तब से ही द वे आई सॉ कि जो लाइव में इंटरेक्शन हो रहा है वो रिकॉर्डेड में नहीं होने वाला था। तो वो उसने इतना मोमेंटम दिया सर कि जो भी खत्म करना है वो लाइव में ही करना है। और दूसरा ये था कि अगर हम रुकते हैं तो फिर उसके बाद फिर से वो नोट जो है वो नहीं रिवाइज होने वाले।
जो भी क्लास के साथ हो जा रहा था वो टारगेट वही था कि वीडियो क्लास के साथ खत्म करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे नहीं पूरा लेकिन जितना पॉसिबल है मैक्सिमाइज वो नोट्स खत्म करना है। सो दैट बहुत गिव द मोमेंटम सर की क्लास के साथ पेज बनानी है, क्योंकि एट स्टार्टिंग में ही खलील सर ने एक ओरिएंटेशन लिया था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट हाँ क्लास आपके साथ एंड तक है, लेकिन आप भी क्लास के साथ एंड तक रहो। मतलब वीडियोस करके निकल जरूरी, जाओगे, बहुत जरूरी। डिस्कशन में निकल जाओगे, तो हम साथ में सर मतलब टेस्ट एंड डिस्कशन तक आई वाज विद द क्लास। जो सारे आप सब कुछ ज्वाइन किया, क्लास, टेस्ट एंड डिस्कशन, यस क्यूआरपी क्यूआरपी सब? भी सर, हाँ सर क्यूआरपी तो आई कॉल्ड यू ऑन द डे ऑफ रिजल्ट की सर 75 क्वेश्चंस तो सीधा सीधा थे। मतलब अच्छा। जिस वे में आपने बोला था एग्जांपल्स देके सीधा वो एग्जांपल्स वहां पे याद आ रहे थे, तो 70 क्वेश्चन तो क्यूआरपी में से भी थे। और आई वॉज टिल द एंड विद द क्लास, क्योंकि सर खलील सर ने वही बोला था कि हम हमारा प्रॉमिस पूरा करेंगे, बस आप हमको ये प्रॉमिस दो कि आप बीच में नहीं छोड़ोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दिस इज द कमिटमेंट जो रिजल्ट लेके आता है ना, ये सब कमिटमेंट की बात है कि इतना आपने परसिवरेंस रखा, आपने सिस्टम को फेथ किया, सिस्टम ने आपको बेक किया, एंड चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ती रही। एंड आपका देखो, सारे सब्जेक्ट तो सब अच्छे से नहीं कर सकते, कोई किसी सब्जेक्ट में किसी किसी में वीक हो जाता है। यस आपने कितने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए थे और कितने सब्जेक्ट आपको लग रहा था कि थोड़े बहुत वीक है, और उनको फिर आपने कैसे किया? सर एग्जैक्टली जो मेरे मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आरआईएस से पहले मैंने स्टडी स्टार्ट किया था, तो तब कुछ सब्जेक्ट्स हुए थे। सो व्हाट हैपेंड सर, जब मैंने आरआईएस किया तो एट द एंड जब सिलेबस खत्म हुआ तो मैं कॉन्फिडेंट था कि देर वे 13 सब्जेक्ट जो मेरे बहुत अच्छे से हुए थे। उनके टेस्ट में भी अच्छा स्कोर था, उनके पीवाई क्यूज में भी आई वाज गेटिंग 80-85%। और उसमें से मतलब वन ऑफ माय जो सबसे स्कोरिंग था और जो एग्जाम में भी रहा, दैट वाज फर्स्ट वन वाज सर्जरी, सेकंड वन वाज गायनेक। एंड हम्म। सो मतलब दैट वाज पहले से ही अच्छे थे। और आई लेफ्ट विद सर जो छोटे सब्जेक्ट थे, क्योंकि ऑर्थो मतलब मेरा नहीं हुआ था, उसके बाद एनेस्थेशिया आई वाज नॉट डन, एंड डर्मा आई वाज नॉट डन, एंड इन मेजर सब्जेक्ट जो था वो मेरा ऑफ था, थोड़ा वीक था। हम्म। तो वो तो टेस्ट। आप टीबीलीसी से खाली एग्जाम देने वाले दिन एक दो दिन पहले आए थे? नहीं सर, तिबलिसी से जब अराइज का मेन वीडियोस खत्म हुआ तब मैं इंडिया आया था। उसके बाद टेस्ट एंड डिस्कशन मैंने इंडिया में से ऑनलाइन किए थे, क्योंकि सर मेरा अच्छा, मेन कंसर्न यही था कि मैं क्लास नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया ना आपके लिए, बहुत टाइम बच गया आपका हाँ एक्चुअली। सर। और कितना प्रेशर रिलीज हो गया होगा आपको, अभी आप तिबिलिसी में यू आर फीलिंग सो इजी, मतलब लाइफ बिल्कुल सेट, ऐसा फील आ रहा होगा, राइट? यस सर। कोई लोड ही नहीं है इंडिया जाके वापस कि आपको वो करना है, बहुत स्ट्रगल करना है। नाउ यू आर फीलिंग सो मच रिलैक्स्ड। यस सर। एंड बहुत सारी बार ऐसा होता होगा ना यार कि पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा फील आता है यार, अब मुझे नहीं लगता इस बार हो पाएगा, नेगेटिव थॉट आ जाते थे, ऐसा कभी हुआ क्या? यस सर, मतलब दैट वाज तो इन द जर्नी हुआ था, लेकिन एंड में भी इट वो मतलब जब जब सर क्वेश्चंस कर रहे थे तब तब वो पॉइंट याद आ रहा था कि यार यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो एग्जाम में ये होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, सब भूल जाएंगे एग्जाम में तो क्या होगा, कुछ याद नहीं आया तो। एग्जैक्टली सर। तो सर और ऐसा मतलब एग्जाम एग्जाम में भी हुआ होगा ना कि लगातार आपको चार पांच क्वेश्चन नहीं आए होंगे, या ऐसा डिफिकल्ट लगा, ऐसा कुछ हुआ? चार पांच तो नहीं सर, पेपर वन तो अच्छे से गया था, लेकिन पेपर टू मतलब अभी ऐसा एफएमजी सर स्टडी ऐसा किया था कि सब लोग बोलते कि पेपर वन के ये सब्जेक्ट से आप इसमें इतने नंबर ले लो, पेपर टू के ये सब्जेक्ट से, तो मेरा भी प्लान वैसा ही था। लेकिन हम्म। सर जैसे एग्जाम स्टार्ट किया तो पेपर वन का पहला क्वेश्चन मुझे पीडिया का आया था। हाँ। तो जो कि लगा था पेपर टू में आएगा। तभी समझ गया कि कुछ तो भी चेंज होने वाला है, तो चार पांच क्वेश्चन देखे, ऑप्था भी आया, सर्जरी भी आया। तो आई वाज कि बाबा चलो नाउ वी हैव टू गो इन दैट वे, तो वैसा मैं रेडी हो गया था। लेकिन सर जब पेपर टू दिया, पेपर टू में पहले 3 क्वेश्चन थे एनएट के, अगले 2 क्वेश्चन थे माइक्रो के, जो कि मतलब सॉल्वेबल थे बट मुझे नहीं आ रहे थे। बट हम्म। एंड एंड के एक 2-3 सेशन में खलील सर उन्होंने कहा था कि यू हैव टू गो टू द 300 क्वेश्चन, शायद के आखिरी के 150 आपके लिए बने होंगे। यस, मे या बी, मे बी। सो फर्स्ट हाफ देने के बाद में आपको कैसा लग रहा था ब्रेक में? सर आई यू वॉज फील? फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मतलब कर लूंगा, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। टू बी बहुत अच्छा, वेरी कहाँ था आपका सेंटर, कहाँ पे था? पुणे। वेरी गुड। एंड आपने ब्रेक में कुछ पढ़ाई की या जस्ट नहीं रिलैक्सिंग? सर, चिल था मैं, मतलब वन डे बिफोर एग्जाम हम 2 लोग साथ में स्टडी कर रहे थे, तो हमने 6 बजे एग्जाम मतलब
रीडिंग एंड किया और चक दे इंडिया मूवी देखी, सो गए और सुबह एग्जाम को गए थे। ये चक द इंडिया मतलब किसी आपके सीनियर ने सजेस्ट किया, आपने खुद से नहीं ऑप्ट सर, किया है? नदीम नदीम सर ने सजेस्ट की थी। अच्छा, नदीम सर ने बोला चक द इंडिया देखने के लिए। हाँ, उन्होंने बोला था कि आखिरी के 6 घंटे तुम्हारे पास, तो कर लो जो करना है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। और हैव यू स्लेप्ट नाइसली ऑन द डे बिफोर यस एग्जाम? सर, वेरी नाइसली, मतलब आई टुक इनफ स्लीप, कंफर्टेबल? या 7.5 यू 8। वर कॉन्फिडेंट बिफोर गोइंग टू एग्जाम? जितना कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम देने के बाद था उतना ही था जाने से पहले भी कि हाँ हम कर ही लेंगे? नहीं सर, कर ही लेंगे तो नहीं था, लेकिन आई वॉज मतलब 50-50 कि यार पेपर अच्छे से आता है तो निकाल लेंगे, बट पेपर कुछ अलग ही आता है तो पता नहीं क्या ही होगा। मतलब आप मतलब जैसे आप एग्जाम देने जा रहे थे, आपको अपने आप से सेटिस्फाई था कि यार जो मैं बेस्ट कर सकता था वो मैंने यस किया सर, है, दैट तो आई वॉज मैंने कमी सेटिस्फाइड। नहीं रखी? नहीं नहीं सर, मतलब सर द स्टोरी वाज दैट कि जब जब क्लासेस भी चल रहे थे यार, इसके एट द सेम टाइम मेरे यूनिवर्सिटी के भी क्लासेस थे। सो आई हैड प्रॉमिस्ड वन थिंग कि द डे ऑफ द रिजल्ट व्हेन आई विल कम बैक, आई विल नॉट से कि यार आई कैन डू मोर बेटर, मतलब कुछ हो सकता था। जब आप प्रिपेयर कर रहे होते थे तो ऑनलाइन क्लास होती थी, आपकी दूसरी क्लासेस भी होती थी, तो जो क्लास मिस हो जाती थी कभी कभी क्योंकि आपकी कॉलेज की क्लासेस भी हाँ चल रही है, कुछ काम है, फिर कैसे करते थे उसको आप? सर, वो तो आरआईएस ने एक फैसिलिटी दिया था कि हमारे जो क्लासेस थे वो रिकॉर्डेड रहते थे, तो उसमें वो अच्छा। पूरा कंटेंट रहता था, जब भी आप चाहो देख सकते थे। तो दैट हेल्प मी सर, क्योंकि मतलब 2-3 सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे कोप अप नहीं हुआ पॉसिबल करना। तो उसमें हम्म। फिर सर मैंने एट द एंड जब वो वीडियोस अपलोड होते थे आरआईएस के, हम्म। वो ही मैंने जो रिकॉर्डेड थे उनको देख के उनके नोट्स बनाए, फिर उनसे ही कंटिन्यू स्टडी किया था। अच्छा। और जब सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए थे, आप इंडिया आ गए थे, टेस्ट एंड डिस्कशन सब कर रहे थे, तो रोज कितने एमसीक्यू करते थे आप? सर जब मतलब इंडिया में वापस आया था, तो एट द एंड जब मतलब जब सिलेबस खत्म था, तब 100 PYQs एंड 60-70 अदर, मतलब जो भी किसी भी सोर्स के एमसीक्यूज। तो रोज 150 प्लस एमसीक्यू आप कर हाँ, रहे थे? 150 तो हो ही जा रहे थे सर। और लोएस्ट जीटी स्कोर कितना था? लोएस्ट लोएस्ट। सबसे पहला जो दिया था सर उसमें था 131। और हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट जो सबसे एंड में दिया था सर उसमें गया था 167। हर बार ये बढ़ता ही जा रहा था, कभी नहीं बीच में सर, ऐसा बढ़ के नहीं, कम हुआ? नहीं सर, कम भी हुआ था। कम भी हुआ था? हाँ बुरा बहुत लगा होगा उस दिन? सर, मतलब बुरा तो इतना लगा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि करना क्या है अब। मैंने सीधा उसी दिन और कभी कभी ऐसे कुछ डाउट वगैरह हो जाते थे तो आप फैकल्टी से पूछते थे या क्या करते थे? यस सर, मतलब मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज के नंबर थे, लेकिन नदीम सर ने जो नंबर दिया, तो कुछ भी सर स्कोर नहीं आ रहा है क्या करे, तो नदीम सर को ही कॉल करते थे, सर ये सब्जेक्ट का ऐसा हो रहा है। तो मतलब वो तो सर डे वन से लेके तो एग्जाम के दिन तक वो साथ में थे, एग्जाम के बाद भी मैंने पहला फोन सर को ही किया तो था। एग्जाम के टाइम पे भी आपके दिल के अंदर बैठे हुए होंगे वो एकदम? यस सर, मतलब ऑल इज वेल, हमेशा ऑल इज वेल, आई एम हियर, नथिंग टू वरी। नथिंग टू वरी। Yes, 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 yes. And he's a very kind-hearted person, and he's also a very good friend of mine. जब भी यस सर। मिलते हैं तो whenever I go to Hyderabad तो we used to meet. So let's come back to the business. आपके जो जूनियर्स हैं जो अभी प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर लाइक डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था सर एग्जाम का, टू बी वेरी ट्रू, 150 क्वेश्चंस तो बने होते पास होने के लिए। मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे सर बाहर, जो हमने सुने थे जब एग्जाम नहीं दिया था, कि बहुत ही अलग लेवल का पेपर आता है, पीजी का होता है, तुमसे नहीं होगा। तो सर हाँ, ट्रू की क्वेश्चंस होते हैं, बट 50-60 क्वेश्चंस वेयर कि जिनका कोई नहीं समझता, लेकिन 150 to 160 क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स वेयर, मतलब कि वो पास होने के लिए बने थे। पास होने के लिए वही अपन बात करना ना, इजी क्वेश्चन ही सब कुछ डिसाइड करता है यार। आप इजी इजी सही कर दोगे ना तो पास हो जाओगे। यस सर। और मुझे बताओ कि ऐसा है ना, कंटेंट तो यार बहुत सारा अवेलेबल है, यस सर। राइट? आप टेलीग्राम पे यहाँ पे 50 चीजें मिल जाती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैज मेड द मेन डिफरेंस इन योर सक्सेस? व्हाट डू यू थिंक? सर रिवीजन इज द की। आप ना मतलब कंटेंट 10-12 पेजेस थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ा है ना वो उसको जितना बार 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 पढ़ते हो, दैट विल दैट विल डिसाइड कि वेयर यू आर गोना लैंड अप। I totally agree with you. And even I repeated so many times this in the class. Is the content is not going to win the game. It is the revision that makes the huge यस सर। difference. So, okay. So this is one thing for your juniors that those whoever is going to listen to this, it is the early you start, it's going to be better.
when बेटर। you are back in your college. जितना जल्दी चालू करोगे उतना अच्छा है. And try to do at least 3 4 5 subjects when you are in college, so थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, right? एंड डोंट वरी अबाउट द कंटेंट. आपको आप मैं एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका मेन स्टडी सोर्स आपके नोट्स ही थे, इसके अलावा आपने कुछ बहुत इधर उधर से पढ़ा? नहीं सर, मतलब फॉर जो मेरे 14 सब्जेक्ट्स थे तो बहुत अच्छे थे, उनके लिए तो कंप्लीट नोट्स मेरा मतलब वीडियोस हुए थे, वो नोट्स रिवाइज हुए थे। और जो सब्जेक्ट वीक्स थे उनका मतलब मैंने सिर्फ नोट्स गो थ्रू किया था, उनके वीडियोस नहीं मतलब देखे नहीं थे क्योंकि मैं कर नहीं पाया था। लेकिन सर आई वाज स्टिक टू द नोट्स, और जो जिस फैकल्टी ने बोला था कि मतलब वाइल डूइंग द वर्कबुक कि चलो मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, इन द एंड के 15 डेज एंड लास्ट रिवीजन मैंने वो ही पढ़ा था। और मेन सोर्स तो नोट्स था, और उसके साथ साथ चीट कोड्स, मतलब कि ये लिख के रखो, ये बना के रखो। और एक सब्जेक्ट खत्म होता है दूसरा चल रहा है, तो मतलब मैंने पहले 3 सब्जेक्ट के बाद रियलाइज किया था सर कि फिजियो अच्छे से पढ़ा भी था, उसका रिवीजन भी किया था, टेस्ट भी दिया था, नंबर भी अच्छे आए थे, लेकिन जब अगली बार लिया तो ऐसा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ फिजियो। तो तब अच्छा. से फिर वो चीट कोड वाला आइडिया हमने मतलब मैंने यूज किया था पूरा, मतलब सब लिख के रखा था, उसके गो थ्रू करते थे बस हर 10 15 दिन में। और एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ा आपने? सर एग्जाम से एक दिन पहले मतलब मेरा पर्सनल जो था, आई एम मतलब नॉट वीक, बट मेरा कंसेप्ट से ज्यादा ये रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक थोड़ा कमी वीक ही था। तो एग्जाम्स के एक दिन पहले सर एक 20th नोटबुक करके था, जिसमें वो सारे पॉइंट्स थे जो सिर्फ रट उसको सिर्फ रटना ही था। उसमें आप कुछ कंसेप्ट कर नहीं सकते, जैसे आपके पीएसएम के वैक्सीन थे, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के कल्चर मीडियम थे, उसके बाद आईपीसीस थे। तो जिनको रटना 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 है सर, वो लास्ट दिन के लिए रखा था। दैट वाज द 20th नोटबुक इन विच देयर वाज ऑल द कंटेंट विच इज जस्ट नीडेड टू बी मगिफाइड, कुछ हो नहीं सकता उसका बस। बाकी पहले दिन उसके पहले तक कंसेप्ट वाले खत्म कर लिए थे सब, उनको हाथ नहीं लगाया था फिर। वेरी गुड, वेरी गुड. एंड व्हेन यू आर गिविंग जीटीज, हाउ, मतलब कि जैसे 5 घंटे, आपको कितना टाइम लगता था जीटी खत्म होने में, जनरली 300 एमसीक्यू करने में? सर इन इन द स्टार्टिंग तो मुझे टाइम मतलब टाइमर लगा के हमने स्टार्ट किया था, तो इन द स्टार्टिंग तो आई वाज जस्ट एबल इन द डिसाइडेड टाइम, मेरे कुछ तो भी 10 15 क्वेश्चन छूट गए थे हम्म. मेरा, जिसमें मेरा स्कोर 131 आया था। तो उसके बाद फिर सेकेंड टाइम थोड़ा उसमें इम्प्लीमेंट किया, फैकल्टी से टॉक टॉक किया था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो दे टोल्ड कि एमसीक्यूज पहले करो, उसके बाद थोड़ा एग्जाम का पैटर्न रखो कि जो आपको आता है वो अच्छे से कर लो, जो नहीं आता है उसके टाइम मत दो, आगे निकल हम्म. जाओ। फिर सर हम्म. उसके बाद थोड़ा करते 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 मेरा थर्ड वाला जो ग्रैंड टेस्ट था वो मतलब एग्जाम के कंपेयर वाले टाइम में ही अच्छे से सॉल्व हो गया था, और ओके. जिसमें मेरा स्कोर 154 आया था। यस. हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द अराइज ऑनलाइन लाइव? मतलब ऑनलाइन क्लास, वर दे कंडक्टिंग वेरी स्मूथली, देयर वाज नो प्रॉब्लम? हाउ नो दे सर, वर? नो लाइक इफ आई हैव टू से कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आई विल से सर कि ऑनलाइन प्रूव्ड मोर बेटर फॉर मी, क्योंकि एवरीथिंग सर वी डोंट वांट टू गो एनीवेयर, घर में ही थे, सब आपके कन्वीनियंस में मिल जाता है. कन्वीनियंस में था। उसके बाद सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे कि अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो हो जा रहे थे। एंड इट वाज नॉट लाइक दैट सर कि हम मतलब इट वाज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस, टीचर लोग साथ में होते थे, और जब नहीं होते थे तो वी वर ऑलवेज ओपन अप टू कॉल देम। So यस, that never made a big difference. But yeah sir, ऑनलाइन में there were many things कि हाँ कन्वीनियंस था, और ट्रैवल नहीं करना था, जहाँ पे हो वहां से कर सकते हो, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था सर इंडिया आने का। हाँ, वेरी आई हैव गुड. टू स्टडी फ्रॉम देयर ओनली। नहीं, बट गुड, इट वाज, आपने कॉलेज के रहते रहते ये सब किया, इट्स वेरी कमेंडेबल थिंग, राइट? यस इतना सर। आसान नहीं होता है. आपको दूसरा काम भी करना है, कॉलेज भी जाना है, ये भी करना है, एंड यू डिड दैट. वेरी फैंटास्टिक जॉब दैट यू हैव डन. एनीवेज, so it was very nice to talk to you, Dr. Himanshu, and I wish a lot of success to you in future. It is one of the first few steps that you have taken in this long journey. And I completely have a trust that you are going to reach a new heights, because आप में जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग ही दिख रहा है. मतलब आपकी बात में ही दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस कि हाँ सर कर लेंगे, मतलब चक दे इंडिया देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. So many things are there, right? That spark is there, and that is very important to यस keep सर। that spark, right? लाइफ में चैलेंजेस तो हमेशा ही आएंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाले. You have to accept them gracefully, and you have to learn from those things, right? So
मेरे लिए तो मेरे को हमेशा ऐसा फील होता था कि यार ऑनलाइन क्लासेस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी बोरिंग, बट आप लोग भी उसको चैट बॉक्स पे बहुत इंटरेस्टिंग Yes, बना sir. देते थे, राइट? आप बहुत सारा आंसर लिखते रहते हो चैट बॉक्स पे, ये वो इतनी बातें तो ऑफलाइन में नहीं होती जितना आप वहाँ पे ऑनलाइन में लिख लिख के उसको एकदम वैसा बना देते हो। सो इट काइंड्स ऑफ वेरी गुड फीलिंग देयर, एंड जब आप लोग पास हो जाते हो and when we are getting those messages, we talk with you, it feels so happy for us also at the same time. It's just not your happiness, we are also equally happy for that you have cleared this exam, and I wish you a lot of success. आपके आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं They are इसी with me, तरीके sir. They से। want to have a talk with you. यस 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 यस। नमस्ते अंकल। Hello, sir. Good evening. Myself, V.N. Borse, working as a principal in Srimati Sharat Chandrika Suresh Patil Institute, Chopra, here in engineering यस, college. very Namaste. nice to meet you, sir. A lot of congratulations to you, to your family, to the future doctor, and we are so happy to have you here. It's Thank you. very happy to see. बहुत Thank you. मजा आया सर। और मैं अभी हिमांशु को यही बोल रहा था, यार तेरे में एक अलग ही स्पार्क है, राइट? और इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बना के रखना है इसी तरीके से। एंड बहुत सारा आप तो सर यू आर प्रिंसिपल, सो देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन टू हिम। एवरी डे ही इज हैविंग अराउंड यू सच ए नाइस गाइड टू हेल्प हिम आउट, एंड इट इज वेरी नाइस कि आपने मतलब इसने इतनी मेहनत की, और सर कॉलेज में रहते रहते एग्जाम निकालना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो इसने किया है। वो लास्ट इतना आसान। सेमेस्टर इंटरप्ट करता हूँ सर, उसको लास्ट सेमेस्टर में एक फैमिली प्रॉब्लम में आता, उसकी मम्मा जो है हम्म। उसको सीए डिटेक्ट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। वो 2 मार्च में डिटेक्ट हुआ, 9 मार्च में वो ऑपरेशन के लिए इंडिया भी आया था। आफ्टर 5 days he was there in Tbilisi. Again he went back after the या operation. It's very तो good sir. मतलब बहुत वेरी सारे रियली अप्स एंड कमेंडेबल डाउन्स। सर। यस, हाँ उसने अच्छा बहुत। किया। और लेकिन सर है ना सर, ये जो चैलेंजेस आए ना लाइफ में, यही आदमी को, इंसान को मैच्योर बनाते हैं, एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दीज ऑल द लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, यस सर, यस सर। एंड दैट इज गोइंग टू मेक हिम वेरी मैच्योर। एंड आप लोगों का आशीर्वाद है और इसकी मेहनत है सर, ये सब जो इतने कम समय में इसने इतना अच्छा कर लिया सर। इट यस, इज वेरी रियली कमेंडेबल सर। आई एम वेरी हैप्पी टुडे सर। हम लोग भी बहुत खुश है सर, आपके ये जो हैप्पी फेसेस देखते हैं ना सर, मतलब हमारा दिल भी बहुत खुश हो जाता है कि ये जो इतनी क्लासेस होती है, सब होती है, जो थकान होती है ना सर, ये सारी चली जाती है, फिर आप लोगों को ऐसे देखते हैं, मिलते हैं, करते हैं, इट फील्स वेरी नाइस। नमस्ते नमस्ते आंटी जी। Yes, sir. She was one of the biggest motivation, sir. I यस, promised her that I'm gonna clear it in any way and come back to India as soon as possible. यू हैव डिड इट, एंड ये कंप्लीट आपने ग्लोरीफाइड, यू हैव कंप्लीटली चेंज द एनवायरनमेंट, द वाइब्रेशन इन द हाउस। यू अंडरस्टैंड दैट, सब कुछ चेंज कर दिया है, एंड it has brought so much of happiness, and I wish to god that it continues to happen in this way only. It's a long journey, you have to go a long path, बहुत नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है, और इसी तरीके से अगर हम हार्डवर्क करते रहेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, एंड यू आर गोइंग टू रीच टू द न्यू हाइट्स। It Yes, was sir. very nice to see you all, sir, and it was blessing for us also to meet all of you. ये हिमांशु था तो हम आपसे मिल पाए, अदरवाइज तो हम आपसे कभी मिल भी नहीं पाते, एंड it is very nice to see you here, sir. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। And definitely, sir, kabhi bhi, if you visit any of the centers, wherever it is, maybe Arise Delhi, Arise Hyderabad, kabhi bhi aap aaye, we are always open. We will very happy to have you there. श्योर Yes, सर, sir. श्योर। थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू सो मच सर। एंड या गाइस, मतलब मैंने बाद में भी पेरेंट्स से भी कहा, फ्रेंड्स से भी कहा कि यार राइस प्लेड अ वेरी बिग रोल, बिकॉज सर जब मैंने क्लास लगाया था आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा, बट जब टीचर्स का जो साथ था उसके बाद एवरी फैकल्टी, पर्सनली तो आई एम मतलब फैन ऑफ नदीम सर की Yes, किसी भी yes. स्टेज में We रहो all आप। are. We all are fan of him. यस सर। इन एवरीथिंग उनके सर एग्जाम्स जो टीचिंग था वहां से लेके तो एग्जाम्स तक एक सेंटेंस वही याद आ रहे थे। उसके बाद Yes, जब yes. भी प्रॉब्लम्स आए सर की क्लास नहीं हो सकता था, तब भी कॉल करने के बाद हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। जब जब लग रहा था कि सर एग्जाम्स के पहले 1-2 दिन छुट्टी दो सब्जेक्ट खत्म के बाद, वो भी खलील सर ने सॉल्व कर दिए थे। तो सर वी वर लाइक अ फैमिली, मतलब इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम हमको सॉल्यूशन मिलते गया, कभी भी हमको ये नहीं लगा कि यार ये अच्छे से बेटर हो सकता था। Yes. तो ऑन Now, अ डिस्टेंस we ऑफ अ all कॉल। are the part of the family, and we will continue to grow the same way. यस सर। And
मजा आ गया हिमांशु आज बात करके. इट इज वेरी नाइस टू सी यू. वी विल बी इन टच Yes, एंड sir. hopefully you will visit any of the center and somewhere we will meet again. Yes, Thank you. yes, for Thank you, sure. Thank you Himanshu. so much, sir, and thank you to the team Arise as well for everything. Yes, thank you to Andy sir also, right, for Yeah, a smooth conduction of the all yeah. the online classes. That technical team has to take like they deserve a different award, sir. It is very difficult to Yeah, tackle with and all the things. yes, the back end they never come to the stage, but so much important role that play. They are very integral part of the team. It's a very important, a very much important role they are playing actually. Yes, sir. Yes. Like Okay. he was having no matter there was approx thousand of the students, but Yes. every student was getting the solution. Ki, sir, the screen has got stuck. Sir, notes नहीं आए, sir, PDF नहीं मिला. मतलब end तक वो आ ही जा रहा था. He never Yes. 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 thinking this Yes. is not possible. He's like what he He was promised. always available. Yes, And he's always, always always available. Yes. Yes. to Yes. every issue. Thank you. Thank you, Himanshu. Thank you Okay. so Good much, night. sir. Good night. Good Good night. night.